recombinant DNA technology. So recombinant DNA आप समझ गए होंगे. We have already discussed. Recombinant DNA is combination of two types of DNA which is made after cutting two DNA from same or different sources with same restriction enzyme and then ligating them together with the help of enzyme DNA ligase. Okay, so this is the thing we will discuss today. Okay, so these are the 6 steps are written here. One by one we will be taking steps and then we will be discussing it. Let me remove all these things from this whiteboard. Okay, so first one is isolation of genetic material. Second is cutting of DNA at specific locations. Means first we have to isolate DNA from a cell. हमें सेल से उस DNA को isolate करना है, separate उससे करना है. For that we have to break the cell. It may be bacterial cell, it may be any plant cell or animal cell. उसको करना है. फिर उसके बाद में we have to cut the DNA with the help of restriction endonuclease से हमें कट उसको करना है. ओके, थर्ड वन इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि इट इज ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स आर देयर. हम ट्राई करते हैं फिर एरर आती है एक्सपेरिमेंट सब. क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका ये नहीं कि आपने किया और सक्सेसफुल हो गया. इट टेक्स सम टाइम. तो उसमें बहुत लेबोरियस काम होता है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है. तो वी नीड मच मोर सैंपल्स ऑफ DNA. जिस DNA पे हम काम कर रहे हैं, वेक्टर DNA प्लस और जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब जीन ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एनी जीन फ्रॉम विच वी वांट एनी डिजायरेबल प्रोडक्ट. जैसे इंसुलिन बनाना है तो वी हैव टू आइसोलेट द जीन ऑफ इंसुलिन. देन हम वेक्टर DNA और उस दोनों को एम्पलीफाई करवा सकते हैं यूजिंग वन प्रोसेस दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड देन इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल. जो भी रिकॉम्बिनेंट DNA हमारा बना है, इट इज मेड बाय लाइगेटिंग डिजायरेबल जीन विद क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर हमने पढ़े हैं. बैक्टीरिया इज हैविंग सेपरेट एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स दिस इज ऑल्सो separate. Then we have to insert that recombinant DNA into a host cell, competent host cell, by the methods which we have discussed, and then obtaining the foreign gene product. Then what will be happening? The cells which have been made transformant, they will be getting this DNA, and from this DNA RNA will be made. From RNase protein will be made, and we have to extract that protein from that one and purify it and made in tablet form or injectable form, whatever form we want to give it. That is by downstream processing. So let us discuss all the steps one by one. The first one is isolation of genetic material. Okay, so the DNA can be taken from a bacterial cell. बैक्टीरिया में कोई खासियत हो सकती है. और it can be taken from plants or it can be taken from fungi also. Because these three organisms are having cell wall surrounding its plasma membrane, need to first break their cell wall. So treat bacterial cells, plant or animal tissues with enzymes like lysozyme, cellulase and chitinase. You know, the bacterial cell wall is made up of what? Peptidoglycan. किससे बनी होती है? Peptidoglycan. This is modified carbohydrate which is combined with peptide or protein. It is made up of protein plus carbohydrate. So we need to break this
cell wall of bacteria, then we will using this enzyme lysozyme. Lysozyme is the enzyme which breaks the cell wall of a bacteria. Bacteria की cell wall break होगी, so plasma membrane ब्रेकिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी सिंपल, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, उसको ब्रेक करना सेंट्रीफ्यूगेशन और एजिटेशन के द्वारा हम उसको सकते हैं. बट हमें हमारा मकसद है कि वी हैव टू ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड फंजाई. सो टू ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया वी यूज एंजाइम लाइसोजाइम. हम क्या करेंगे, मोटर एंड पेस्टल विच इज शोन हियर इन दिस पिक्चर. We will take the bacterial sample and we will dissolve it in the lysozyme solution, and we will crush the cells. We can crush, and nowadays machines are there, no need to crush. So all the things, whether it is protein, RNA, organelles, everything will come out in the solution. उसको हमें separate करना है. Lysozyme is also found in our some of our body fluids. अब आप में से कोई बता सकता है कि ये कहाँ होता है? एक हमारे बॉडी पार्ट्स में होता है. आपने इसी 8th चैप्टर में इसके बारे में इम्यूनिटी वाला पढ़ा था, इम्यूनिटी वाला चैप्टर में. लाइसोजाइम हमारे और बॉडी में कहाँ होता है? कैन एनीवन टेल? अगर आप बता पाए तो मैं मान लूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं. लाइसोजाइम हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है जो बैक्टीरिया को मारता है? Yes, please answer. Yes, sir. No, not in intestine. Saliva, very few amount, but in tears. आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा. आता ना सलाइवा अपनी जो टीयर्स हैं उसमें लाइसोजाइम होता है जो डायरेक्टली इन बैक्टीरियल सेल को किल कर सकता है. आंखों में आंसू आते हैं ना, उसके साथ में ये सीक्रेट होता है. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो नेचुरली फाउंड इन our human tears. Second is cellulose. Plant cell wall is made up of cellulose. So cellulose will be broken down by cellulase enzyme. So lysozyme is only to break bacterial cells. वो plant और animal में काम नहीं करेगा. Cellulase enzyme is only applicable for plant for breaking the plant cells. And chitinase, as we know, the fungal setup of chitin carbohydrate polysaccharide. To break that one we need the enzyme chitinase. कोई भी चीज है उसके लास्ट में ए ऐसी लगा देते हैं अगर सफिक्स. एक होता है प्रीफिक्स जो सबसे पहले लगता है, उसके चारों एज लगा दो उसके लास्ट में, so that will become an enzyme. तो काइटिन का बना काइटिनेज, it means it will be breaking the chitin और cell break the cellulose. अच्छा, अभी तक हमने काम किया है टू ब्रेक द सेल वॉल. सेल वॉल ब्रेक कर ली हमने. ओके. अब हमारा काम है कि उसमें से डीएनए को सेपरेट करना, क्योंकि हमारा डीएनए, अब जैसे आपने सेल वॉल ब्रेक, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये आपने एक सेल है, यू हैव ब्रोकन द सेल्स, सो डीएनए विल बी देयर. उसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, और सेल डेब्रीज आर ऑल्सो देयर. द सेलुलर गार्बेजेस आर ऑल्सो देयर. सेल वॉल के टुकड़े, सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है. सो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो देयर. तो सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स. फैट इज ऑल्सो देयर. सो दीज आर द थिंग्स. वी हैव टू चूज वन थिंग, दैट इज डीएनए. वी वांट टू आइसोलेट डीएनए ओनली. तो इस चीज में हमारे सोल्यूशन जो हमने ये क्रश करवा के किया है काम, इसमें ये चीजें मौजूद है. तो वी हैव टू सेपरेट द डीएनए. तो उसमें हम क्या कराएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे. इसको किससे करवाते हैं देखिए. अभी why it is not removed. Okay. So our focus is on removing RNA,
एंड प्रोटीन। क्या है हमारा टारगेट, क्या है, इनको रिमूव करना है, आर को रिमूव करना सॉरी RNA is a molecule, nucleic acid molecule. It is broken down by one molecule in enzyme RNase, or in full form it is ribonuclease. Ribonuclease. In short you can write the word as RNase. RNase. This is how the RNA will be broken down into pieces, and this is how it is removed from that sample. Then proteins are removed by treating with protease. प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है तो वी हैव टू यूज द एंजाइम। प्रोटीनेज भी लिखते हैं कुछ लोग, और कुछ बुक्स में आपको प्रोटीएज, दे आर सेम थिंग, वेदर इट इज प्रोटीएज और प्रोटीनेज इज दैट सेम थिंग। द प्रोटीन विल बी ब्रोकन डाउन एंड इट विल बी सेपरेटेड। अदर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। हम इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, पूरी प्रोसेस करवाते हैं, जिससे ऑल द डेब्रीज इंक्लूडिंग RNA प्रोटीन्स बाय ट्रीटमेंट of them by RNA respectively they are removed. Now one thing is left, that is our DNA. अब इस DNA को हम देख नहीं पा रहे, इसको हम देख नहीं पा रहे, तो इसको देखने के लिए we have to put one more thing, that is chilled ethanol. Okay, so जैसे आपके पास में एक पेट्री प्लेट है, कुछ भी है, जिसमें आपने आपके पास मान लो ये एक बीकर है। इन दिस बीकर you are having the DNA, but DNA is not visible in the solution. So what you will be doing, we will be adding chilled ethanol. क्या ऐड करेंगे, चिल्ड इथेनॉल। जो फ्रीज में रखा हुआ इथेनॉल होता है 98% C2H5OH इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल इथेनॉल, वी विल बी दैट इज चिल्ड वन। वो फ्रीज में रखा होता है, चिल्ड हो जाता है। व्हेनेवर वी विल बी एडिंग द DNA विल बिकम सेपरेट एज प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट हो जाता है। और ये आपको करवा के बताएंगे, क्योंकि वन मेजर एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 marks is there in your syllabus practical. So we will be performing experiment, and exactly the thing which you are watching here in this slide of this PPT in pinkish brownish color, the DNA is you are getting the same will be I will be showing by experiment. हम एक्सपेरिमेंट करके आपको ये का ऐसा कैसा दिखा देंगे, ठीक है। दैट DNA इज सेपरेटेड बाय इथेनॉल, क्योंकि उसका प्रेसिपिटेशन बन जाता है, एल्कोहल डालते ही वो प्रेसिपिटेट हो जाता है एक साइड में, एंड बाय स्पूलिंग वी कैन रिमूव दैट DNA सैंपल एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ DNA, वेयर we have used some enzymes to break the cell walls of bacteria, fungi and plants. For that one we have used lysozyme enzyme for bacterial cell and chitinase for this fungus and cellulose for enzyme for plant cell. ये break हो गया, every molecule has come out. This is DNA is mixed with some carbohydrate, protein and this RNA. We have to remove them. Then we will be using the enzymes RNase, protease to remove the protein and RNA. And lastly, to separate the DNA from this solution, we will be adding chilled ethanol. What is that? Chilled. ठीक है। तो इथेनॉल को ये मतलब दारू ला के डाल देंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू यूज द इथेनॉल विच इज प्रिपेयर्ड फॉर लैब एक्सपेरिमेंट पर्पज ओनली, ठीक है। नाउ वी हैव आइसोलेटेड द DNA. नाउ आवर टारगेट इज टू सेपरेट दैट पर्टिकुलर DNA. उसको सेपरेट करना है, पहले उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें कट लगवाना है। लेट अस सी
what it happens here. अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो देखने वाली बात है कि व्हाट विल बी क्वेश्चन आस्क्ड हियर। अब क्वेश्चंस मैचिंग का बन सकता है कि मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर दिस वन। तो जैसे आरएनए एंजाइम का नाम लिख दिया यहाँ पे कि एंजाइम्स यूज टू ब्रेक द सेल वॉल, और सेलुलेज लिख दिया, एज लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल। अब इसको मैच करने वाला आ गया, तो आपको मैच करना है कि कौन सा किसके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैच भी करना आ सकता है। फिर कौन सा एंजाइम किसके ऊपर काम करता है, इट मे बी देयर that 2 marks or 3 marks question may be asked that write the procedure of isolation of genetic material from a cell। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, then we will be cutting those DNA segments। Purified DNA is incubated with restriction enzyme। जो DNA हमने सेपरेट किया है उसको उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाएंगे। तो ये काम सब सोल्यूशन में चल रहा है। डीएनए हमारा क्या है, एक टेस्ट ट्यूब या जो भी आप इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में है, एंड वी विल बी एडिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आरई मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम। एज ए रिजल्ट दिस डीएनए fragments, double stranded DNA will be cut into different sizes fragment। different साइज के फ्रेगमेंट में इसको हम डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स इवन separated by one technology that is known as जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या है, इनकी साइज किसी की कितनी बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। तो डीएनए की साइज को अपन कैसे मापते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डीएनए साइज, कैसे मापते हैं बेटा, कोई बता सकता है? किस में अपन उसकी यूनिट क्या है कि डीएनए इतना बड़ा है छोटा है? कैन एनीवन टेल मी? बेस पेयर, यस, वेरी गुड। और किलो बेस पेयर लगा देते हैं, इसका मतलब दैट इज 1000 बेस पेयर। जैसे अपन ने लिखा 10 किलो बेस पेयर है, तो इट मीन्स 10,000 बेस पेयर्स आर देयर। ओके, नाउ वी हैव टू सेपरेट दोज different sizes fragments using जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये देखते हैं। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन ने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है कि इट्स एग्रो जेल इज यूज्ड हियर, एंड एग्रो जेल इज वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम टू रेड एल्गी जेलिडियम। और ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपके है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, these are two red algae, these are two red algae where this procedure is used। So what we will be doing, see equipment, this is original equipment is here what we will be doing, first agar gel it's found in powder form, we have to dissolve this one in water solution। गर्म पानी में उसको अपन डिजोल्व करते हैं पाउडर को, और उस पानी जो भी लिक्विड बनता है हमारा सोल्यूशन उसको हम उसमें पोर कर देते हैं। इस वाली जो प्रोसीजर है यहाँ पे उसको पोर कर देते हैं, और ये इसके अंदर थोड़े टाइम बाद में इट विल टेक द फॉर्म ऑफ जेल। जेल इज नॉट सॉलिड और लिक्विड, बीच का फॉर्म है। तो ये जेल जब बन जाएगी वी विल बी कटिंग सम वेल्स हियर। उसमें वेल का मतलब कुएं नहीं खोदना है, छोटे छोटे उसमें से क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरा हाथ देखिए यहाँ पे ये जेल है, तो इसमें थोड़ा सा अपन कुछ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में थोड़ा सा अपन खोद देंगे वहां से, सो दैट डीएनए कैन बी लोडेड इनटू दोज वेल्स। उसको वेल बोलते हैं। वेल का मतलब यहाँ कुएं से नहीं है, ठीक है। सो वेल्स विल बी प्रिपेयर्ड हियर, एंड द वेल साइड इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोड। इसको किससे कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई में नेगेटिव एंड
द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस वेल विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक तरफ ब्लैक है एक तरफ रेड है, उससे अपन कनेक्ट इसको कर देते हैं। ओके, अब आप सबको पता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑल द डीएनए विच वी हैव ऑब्टेन्ड आफ्टर आइसोलेशन विल बी लोडेड ऑन दीज वेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पिपेट्स आर देयर। पिपेट आप जो केमिस्ट्री लैब में देखते हैं वो पुरानी है। नाउ इट इज माइक्रो पिपेट्स आर देयर इन विच बाय यूजिंग देम वी कैन एग्जैक्टली मेजर द सैंपल इन 200, 1000 माइक्रोलीटर और 100 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर, उनमें फिक्स होता है। उसको आप एकदम फिक्स कर देंगे तो उतना ही उसकी टिप जो लगेगी आगे उतना ही सैंपल को एक्सट्रैक्ट करेगी। We will be putting DNA samples here and electric supply will be made on. ऑन करते हैं तो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपल्स ईच अदर। और डीएनए सैंपल क्या करेगा, इस जेल में बीच बीच में पोर्स होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हमको। डीएनए सैंपल विल बी रनिंग थ्रू दोज पोर्स एंड इट विल बी सेपरेटेड एज पर देयर साइज। तो जो बड़ा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो पीछे रहेगा, और छोटे वाला जो छोटा साइज में जो फ्रेगमेंट होगा वो आगे की ओर चला जाएगा, यानी आगे की ओर वो सेपरेट वहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि लंबे फ्रेगमेंट को उस पोर के थ्रू क्रॉस होने में टाइम लगता है हमको, तो लंबे वाले फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे, सेपरेट होंगे, और बड़े वाले थोड़े उससे आगे हो जाएंगे। इस तरह से वी विल बी गेटिंग samples separated as per their size, they are separated on this gel। अब ये काम सेपरेट हो गया बट विजिबल फॉर अस, डायरेक्टली हम उसको देख नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वी विल बी staining all the DNA fragments with one dye, that is ethidium bromide को इसमें स्टेन एंड उसको यूवी रेज का एक यूवी रेडिएशन से दिखाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर उस जेल को वी विल बी कीपिंग दिस जेल इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड यूवी लाइट विल बी स्विच्ड ऑन। देन वी विल बी वॉचिंग द सैंपल्स इन द ब्राइट कलर्ड बैंड्स। इस तरह के बैंड दिखेंगे आपको, देखिए आप जो ये डायग्राम में दे रखा है इस तरह के बैंड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। So bright orange colored DNA bands will be visible for us after staining that DNA gel which is having separated DNA, staining with ethidium bromide and then exposure to UV radiation, then that will be visible. So steps: isolation of DNA and cutting at DNA specific location and then isolating it with the help of gel electrophoresis. The word it is indicating here, gel means agrogel is taken here, electrophoresis means electric supply. With the help of electric supply we are separating the DNA fragments at different length based on their size। उनकी साइज के हिसाब से उसको सेपरेट हम कर देते हैं। तो आज के लिए इतना, और बाकी अपन कल देखेंगे इसके अंदर। ओके।